Hello and good afternoon, guys. रेडियो जिंदगी पर बने हैं 1550 AM is where you are tuned in. सुन रहे हैं the Saket Bhatia Astrology Show. Yes, the show which we bring without fail every Tuesday 4 to 5 PM, जहां आप मिलते हैं डॉक्टर साकेत भाटिया से, who is an internationally renowned astrologer and has a PhD in astrology and is also a certified numerologist. Over 25 years का experience है, over 12,000 plus satisfied clients हैं globally, and he's also a board member of International Association of Vedic Astrology and Numerology. एंड ये जो शो है यहाँ बात होती है आपकी ग्रोथ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी प्रोस्पेरिटी. सो इन तीनों में से ईदर और या फिर तीनों ही ऑप्शन अगर आप चूज करना चाहते हैं तो विदाउट फेल कॉल कीजिए डॉक्टर साकेत भाटिया को. यू कैन रीच हिम डायरेक्टली बाय कॉलिंग 408-639-5300. अगेन द नंबर that you can reach him directly for an appointment is 408-639-5300. or you can simply go to the website. वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. The website is by his first and last name, saketbhatia.com. Again, it's saketbhatia.com. And the number is 408-639-5300. We'll be taking calls on air. As you know that this is a caller-based show. अगर आप कॉल करना चाहते हैं during the show time, and if you have any quick question, do call us on the studio line number 510-770-1550. That's the studio line number for a quick call. And if the question is related to astrology, be ready with the date, time, and place of birth. Let's begin. Hello and welcome, Dr. Bhatia. How are you doing today? Full Vedika, good afternoon and warm welcome to all listeners. Thank you for joining again. Uh, Looking forward to yet another exciting episode, huh? Absolutely. So today we'll be continuing the last week's discussion, and just to refresh our listeners, last week we've been talking about the sources of income for the, in fact, last 2 weeks we'll be talking about that. And the first week we discussed the career-based income. We discussed in detail the best astrological timing for job changes in 2025, aligning career paths with your birth chart, and powerful remedies to overcome career obstacles. And last week हमने बात की थी about business partnerships in detail and how to choose a partner, compatibility with different zodiac signs and timings to launch a business. So आज हम hopefully complete कर पाएंगे अपना segment by discussing starting a side business, multiple income streams, and investing in other businesses, right? Absolutely. So तो क्या शुरुआत होता है जी. आजकल आजकल के क्या है इकोनॉमिक लैंडस्केप में everybody is looking, not everyone but majority I would say safely say are looking to diversify their income streams. So this has become increasingly essential, increasingly common and increasingly popular, right? काफी लोगों Right. को सुनने में आता है कि हम एक घर ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं, we're renting it out, we'll have a free house in 30 years, plus उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी. Some people are, doing a job, some are quitting their job to start a business, some are investing in others. तो what is the right thing for you to do? ये जो financial security चाहिए आपको लाइफ में, क्या करना चाहते हो? It should align with your chart, it should align with your passion, it should align with your talent also, no? You don't want to do something that's not going to be fun, that's not going to help you, that you're not interested in. If somebody comes and tells, you should buy land and rent it out to some farmers, you may not be interested. So you'll say, कुछ और होता है ना वहां पर. 2025 is a very strange year because Saturn is going in Pisces, Jupiter is already in Taurus. तो ये जो alignment है, this is exceptionally good for creating new businesses. ओके ये वेंचर्स जो बनाने हैं बहुत अच्छा टाइम है इनको स्टार्ट करने का. बिकॉज सैटर्न जब पाइसिस में आता है इट क्रिएट्स अ शिफ्ट फ्रॉम शुड आई डू इट, शुड आई नॉट डू इट, टू एक्चुअली सेइंग लेट्स स्टार्ट समथिंग. ये जो प्लानिटरी मूवमेंट है ये ब्रेक्स फ्री फ्रॉम ओल्ड लिमिटेशंस कि हमें किसी के लिए काम करना है या हमें खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है. यू कैन डू लिटिल लिटिल ऑफ एवरीथिंग. तो क्वेश्चंस जो लोग टिपिकली पूछते हैं इज लाइक when should I consider to do a side business or should I do a side business this year? तो आज की जो current placement है, like I said, Jupiter is already in Taurus and Saturn is in Pisces. These are slow moving planets ना, तो इनकी importance थोड़ी ज्यादा हो जाती है. अगर आप अर्थ साइन में हो, ascendant which is Taurus, Virgo, Capricorn, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है looking for stability through practical ventures. तो अगर आपको कोई stable source of income चाहिए,
like renting out something, it's a good thing for you to do. Absolutely stable, no risk. So Taurus, Virgo, Capricorn के लिए this is great. अगर एक वाटर साइन चाहिए हो आप, जैसे कैंसर हो, स्कॉर्पियो हो या पाइसिस हो, then this is a great time for you to monetize on your talents. So let's say you play badminton, maybe it's a great time to open a badminton coaching academy, children's academy or whatnot. Hmm. जुपिटर भी जो है ये टॉरस में जब होता है ना, ये बहुत फेवरेबल होता है अगर टॉरस आपका सेकंड हाउस हो, फिफ्थ हाउस हो या 11वां घर हो, बिकॉज सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ मनी, फिफ्थ इज स्पेक्यूलेशन एंड 11th इज गेन्स. तो अगर टॉरस आपका सेकंड, फिफ्थ या 11th हाउस है, इट विल डू वेल फॉर यू. व्हाई डू पीपल डू साइड बिजनेसेस, व्हाई नॉट मेन बिजनेस? क्योंकि साइड बिजनेस जो होता है एडिशनल इनकम स्ट्रीम है, राइट? तो हम जब एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वी वांट टू मेक श्योर कि दिस इज अ गुड प्लेसमेंट, यू डोंट वांट टू लूज योर हार्ड अर्न मनी. और दशा कौन सी चल रही है आपकी? कोई कोई Hmm. दशा ऐसी होती है जो नॉट सो गुड है, जो जी. थोड़ी सी खराब होती है. एंड सिंस दिस इज अ साइड बिजनेस, शुड यू स्टार्ट इट इन दिस दशा, शुड यू स्टार्ट इट विद इन नेक्स्ट दशा? इसमें रिस्क क्या आएगा, क्या होगा, वो पता करना होता है. और फाइनली हम जुपिटर वीनस के एस्पेक्ट को भी बहुत केयरफुली देखते हैं. इफ दीज प्लैनेट्स आर इन गुड स्क्वायर एस्पेक्ट्स, तो पैसे ना ही इजिली आएंगे, बट बढ़ेंगे भी एट अ इजी पेस. देयर हम्म. आर सेवरल फैक्टर्स जो हम आज बात करेंगे अबाउट दिस. ओके. जी. सो आपने कहीं बीच में यू वर ऑल्सो मेंशनिंग कि कौन सा सही टाइम है. सो व्हाट इज द ऑस्पिशियस टाइमिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर? तो एस्ट्रोलॉजी में हम मुहूर्त कहते हैं. जी. मुहूर्त सिंपली मीन्स लाइक अ विंडो, राइट? अगर किसी को मोस्ट कॉमनली यूज मुहूर्त इज गृह प्रवेश एंड मैरिज. डू यू एग्री? यस. ये कॉमन मुहूर्त होते हैं. हम्म. इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी शादी का मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम विद इन दैट विंडो. पहली बात तो हमें देखने की विंडो है कि नहीं. अगर हम्म. है तो उस विंडो के अंदर भी बेस्ट टाइम क्या है. तो मुहूर्त इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी. इनफैक्ट देयर आर सम एस्ट्रोलॉजर्स हु ओनली वर्क ऑन मुहूर्त. वो और कुछ नहीं करते, परफेक्ट टाइम निकालते हैं. एंड बिलीव मी, इट इज नॉट एज इजी एज यू थिंक. ये परफेक्ट टाइम किस चीज का है? बच्चे के नाम रखने का, मुंडन का, गृह प्रवेश का, शादी का, जी. बिजनेस स्टार्ट करने का, कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने का. एक शो में हमने कहा था कि पार्टीज लाइक बीजेपी, कांग्रेस एंड सो ऑन, Aam Aadmi Party, they weren't just named and they weren't formed on one day. They were राइट. formed and filed on a certain day at a certain time with मुहूर्त. So एस्ट्रोलॉजी में ऑस्पिशियस मुहूर्त होता है जो बिजनेस के लिए है. पहले तो हम लगन देखेंगे, उस पर्टिकुलर दिन का लगन, जिस दिन हमें बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना है, उसका लगन लॉर्ड देखेंगे. इज द लगन लॉर्ड प्लेस्ड वेरी वेल इन अ केंद्र, हम्म. त्रिकोण, कहाँ बैठा है वो? अगर लगन लॉर्ड स्ट्रांग है और वो बहुत अच्छी जगह पे बैठा है और उस पे कोई पापकत्री योग नहीं हो, पापकत्री मीन्स इसके लेफ्ट और राइट पे कोई बुरे प्लैनेट्स नहीं हो, और अगर उसके साथ कोई राहु केतु नहीं बैठा है, तो दिस जनरली इंडिकेट्स अ गुड मुहूर्त. रिमेंबर, असेंडेंट हर 2 घंटे में चेंज होता है, तो मुहूर्त का टाइम ऐसे निकाल सकते हैं. दिस इज जी. स्टेप नंबर 1. हम्म. फिर हमें देखना है जो जुपिटर है इसकी ट्रांसिट क्या है. फॉर एग्जाम्पल आज जुपिटर टॉरस में है, डू यू नो? एंड ये जो टॉरस में आता है, ये एक एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी देता है टू स्टार्ट अ बिजनेस, particularly a business during पुष्य, रोहिणी या रेवती नक्षत्र में. ओके. Unfortunately, Jupiter will get out of Taurus, and this is going to happen towards this month. अब निकल गया है या निकल जाएगा. तो businesses that have started should have the over advantage of doing better. पुष्य, रोहिणी और रेवती नक्षत्र जो हैं, ये abundance देते हैं, साथ में stability भी देते हैं. Obviously, पुष्य सबसे auspicious है from material prosperity. जी. पुष्य नक्षत्र में जो बिजनेस स्टार्ट किया है, उसे जुपिटर की ब्लेसिंग मिलती है एंड इट गिव्स देम विजडम ऑन हाउ टू ग्रो देयर बिजनेस. तो हमने कवर किया है लगन, अब हमने कवर कर दिया नक्षत्र. नक्षत्र. अब तिथि बात करते हैं. तिथि इज जो मून का फेज है, राइट? हम्म. सो मून बढ़ता है और घटता है, बढ़ता है, घटता है. वी ट्राई टू टेल यू कि बिजनेस स्टार्ट कीजिए जब मून वैक्सिंग हो. अगर वैक्सिंग मून होगा तो मून स्ट्रांग हो रहा है, और इसकी जो, इसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, मीन्स इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, 10th एंड 11 लूनर डेज आर कंसिडर्ड वेरी गुड. सेकेंड मनी हो गया,
third is communication, fifth is luck, seventh is business partnership, 10th is growth, and 11th is advancement, fame, gains. तो अगर आपने इन तिथियों में शुरू किया तो और भी बेटर होता है, राइट? 11वीं तिथि को हम एकादशी कहते हैं. Since it is the 11th house of gains, it hopefully should give you gains. Okay. On the other hand, launching a business during Amavasya is not considered good Good, yeah. because eclipse होता है ये. जी. Okay. अगर चौथा लूनर डे है वो भी अच्छा नहीं है और फोर्थ लूनर डे है ये भी अच्छा नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेस फेल हो जाएगा. It creates obstacles during the early stage of business, not in the business in general. तो अगर कोई आपको कहे कि हमें असेंडेंट देखना है, हमें प्लेसमेंट ऑफ लॉर्ड देखना है, हमें ट्रांजिट्स देखनी है, हमें तिथि देखनी है, सब तो मैच होने से रही. यू कांट डू दैट, राइट? Right. करेक्ट. बट यू कैन ऑलवेज मेक श्योर कि सम ऑफ द थिंग्स आर मैचिंग. तो जैसे मून का फेज है, दिस इज स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर मून आपका वेनिंग मून हो एंड मून इज वेरी क्लोज टू सन, तो इनिशियल डिफिकल्टी होती है. मे बी डिफिकल्टी रेजिंग मनी, डिफिकल्टी विद पार्टनर्स, समथिंग लाइक दैट. मर्क्यूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा विदिका इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस बिकॉज ये स्पीच का प्लैनेट है. एंड जब स्पीच क्लियर होती है तो बिजनेस क्लियर होता है. वेंचर्स जो होते हैं पार्टनर्स के साथ वो अच्छा होता है. आपका दिमाग का थॉट अच्छा होता है. जी. ऑन द अदर हैंड अगर मर्क्यूरी थोड़ा रेट्रोग्रेड हो या कंबस्ट हो तो इट बिकम्स एन इश्यू, राइट? Right. एंड एक और चीज हमें देखनी है, गंधंत. गंधंत मीन्स अ प्लैनेट विच इज एट अ फायर वाटर साइन. अगर प्लैनेट फायर वाटर साइन में 3 डिग्री पे हो, लेफ्ट या राइट, इट बिकम्स वेरी वीक फॉर गुड और बैड. बहुत वीक हो जाता है. वी वांट टू अवॉइड गुड प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, वीनस एंड द Mhm. असेंडेंट लॉर्ड टू बी इन गंधंत जब आपकी कंपनी या बिजनेस स्टार्ट हो. एंड फाइनली जब राहु केतु फर्स्ट सेवंथ, then it is good because it almost always creates unexpected disruptions in business partnership. In business partnership के लिए you want to make sure कि success हो. Today's topic is, side business, right? So you're still investing in some business, you're still doing something. और Right. अगर ये राहु केतु 1/7 पे हो, it's considered a no. So टाइमिंग मुहूर्त इस हिसाब से निकाला जाता है. असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, तिथि, ट्रांजिट, कौन सी तिथि में कहाँ है, नक्षत्र, Mhm. राहु केतु एंड कंदंत. ये अगर आपको पता हो देन यू विल बी एबल टू टेक आउट फेवरेबल टाइमिंग फॉर अ बिजनेस लॉन्च. समटाइम्स हमारे साथ ऐसा नहीं होता. See, Okay. people come in and say, I want to start my business. When? ASAP. और हम देखेंगे, हम कहते हैं कि भाई विंडो ही नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने की. नहीं, हमें करना ही है. सो इन दैट केस वी आर सेइंग डोंट डू इट. बट अगर आपने फिर भी करना है देन वी आर गिविंग यू, अ 2 वीक विंडो. उसके बाद नो, हमें अभी करना है. अगर आपको अभी ही करना है then you can only propose something which is making sense and which we think is 30% chance. So इसका ये मतलब नहीं है again business will fail. It just means initial hurdles बहुत होंगे आपको. Right. तो यही कहते हैं कि make your life easy, don't stress, try making sure कि timing of starting any business is right. Astrological consideration is very important to that. Absolutely. सो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो रही है अबाउट साइड बिजनेस एंड आई थिंक दिस इज़ अ कॉमन थिंग विच इज़ ऑन एवरीबडीज माइंड. जो भी जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, वट एवर योर करियर इज़, वी ऑलवेज फील स्पेशली इन द बे एरिया कि कुछ कुछ साइड हसल भी होना चाहिए. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, दिस इज़ द टाइम. वी आर ओपनिंग द स्टूडियो लाइन्स नाउ. आप बात कर सकते हैं डॉक्टर भाटिया से डायरेक्टली. डू कॉल अस 510-770-1550 if there is a question about the side business or any other business you are planning to do, anything जो भी आप पूछना चाहते हैं about yourself, about your loved ones, कॉल कर सकते हैं. अगेन द स्टूडियो लाइन नंबर इज 510-770-1550. द एस्ट्रोलॉजी शो विद डॉक्टर साकेत भाटिया इज ऑन रेडियो जिंदगी, और अभी आप लाइव बात कर सकते हैं उनके साथ. If you want to talk, connect with him, make an appointment, and meet him in person, the number to call directly is 408-639-5300. And the website, once again, is saketbhatia.com. We have a call. Can we quickly start taking calls?
Hello, you're on air with Dr. Saket Bhatia. Do you have a question, ma'am? I have a question. Yeah, go ahead. Yes. Hi, how are you? Doing good. So this is regarding the investment property, very much similar to the side business that you are talking about. Okay. So we are constructing a apartment in India, and we wanted to choose the right muhurat for the Grah Pravesh. So the date of birth of my husband is 31 August 1978, 7:40 p.m. So with a lot of things that is happening around, with the war and everything, we wanted to see if there are any muhurat during the summer break that we can go and get it done, or if it is not good, then we would like to know what is the right time. So, what is his place of birth? His place of birth is Nellore. It is in Andhra Pradesh. Okay. So I'm trying to, you said, how do you spell that? Nillur or Villur? What did she say? I'm sorry. Nellore, or else you can put it as Hyderabad. Oh no, I got Nillur. So I have your husband's Kundli and he's born in Nillur, August 31st, 1978 at 7:40 p.m., right? Correct. So his Kundli has, uh, he's a Pisces ascendant, okay? And for Pisces ascendant, the ascendant lord is exalted, which is extremely strong. It's making a very strong Gaj Kesari Yoga. So finances may, this is going to work very well for you. Okay. Dasha is running Moon Rahu. Moon Rahu Dasha will keep running all the way down till December 2025. But we are trying to tell listeners, Muhurat typically should not be done when there is Rahu Ketu on 1/7 axis, which is in your husband's case, and during Rahu Dasha. So this is not considered the best time. Also, Jupiter is still in Taurus. I would say wait. You have 1 year. Do it during Moon Jupiter Dasha, which is starting in December 10th, 2025, and that Dasha will go on. I give you time between December 10th, 2025 and end of May 2026. That is a good time for you to do something with the property. That is the Muhurat time for you. I mean, if you want the exact Muhurat time, we won't be able to do it on the show because we don't have that much time. It's very limited. Yeah, sure. Muhurat calculation will take. But you're looking at a general window between December of this year and May of next year, not before that. Okay? Okay, sure. Thanks a lot for Thank answering. you. No worries. Take care. Bye. So, as we did talk about the auspicious timing, so can you also tell our listeners the business sectors which are favored by planetary position? Can astrology help us with that as well? Absolutely. Astrology not only can, but I think astrology का use कीजिए to figure out कि आज की date में what is beneficial for you. कि हम भागदौड़ में अटक जाते हैं. जी Every second person I meet is saying हमें consulting company start करनी पड़ती. Why? Because सबने start की हुई है. You need to think outside the box, right? एस्ट्रोलॉजी में 9 planets हैं, इन्हें हम नवग्रह कहते हैं. हर एक planet की एक importance होती है, हर एक planets की strength होती है, industries represent करती है, business activities represent करती हैं, cycles होते हैं, right? अब Jupiter Taurus में है, try doing a business related to finance, banking, education, spiritual guidance. Again, finance, banking, education, yeah, spiritual guidance are considered very good because Jupiter will only expand these. If you start a business in these, they are likely to grow. They are likely to do well. इन्वेस्टमेंट करना है तो ओनली स्टार्ट इन वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज या कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हो. जुपिटर इज डेफिनेटली फेवरिंग academic educations at this time. Prosperity मिलेगी if you start one of these businesses. Now let's say वेदिका आपको ये बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है या नहीं करना है. Do you agree? हो जी सकता है, right? या Then we will switch on and look कि वीनस कहाँ है. वीनस कारक है लग्जरी, ब्यूटी, रिलेशनशिप्स का. And
वो भी जुपिटर के साथ टॉरस में ही बैठा है, बट गेस व्हाट, टॉरस इज द एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ वीनस। तो मूल त्रिकोण बहुत स्ट्रांग हो गया है, मूल त्रिकोण सॉरी, Mhm. वो जो मूल त्रिकोण में इतना स्ट्रांग हो गया है, ये रेयर कंजंक्शन है, इट डजंट हैपन दैट ऑफन। तो इट इज गोइंग टू टेल यू कि अगर आपको वो बात बिजनेस नहीं करनी, you can equally be successful in a business related to hospitality, like an Airbnb, fashion, jewelry, cosmetics, relationship counseling. It's a very good businesses to start if you are interested in anything related to Venus. Then you can come and say कि नहीं मुझे इसमें भी interest नहीं है. Let's say I want to something related to Mars. Okay. Mars is like a security business, right? Military, surgical equipment, medical company start करनी है आपको. Unfortunately, Mars is debilitated in Cancer. जब मार्स डिबिलिटेटेड होता है, और मार्स इज अ फायरी प्लैनेट, राइट? करेक्ट। एंड कैंसर तो वाटर साइन हो गया, तो बिसाइड्स बीइंग डिबिलिटेटेड उसकी एनर्जी नहीं निकलेगी ठीक से। सो Right. दैट रिक्वायर्स डिसाइसिव एक्शन, कंपेरेटिव स्ट्रेटजी। इट्स नॉट अ गुड टाइम टू स्टार्ट दैट एट ऑल। इफ यू कम टू मी एंड से हमें कुछ मार्स रिलेटेड करना है, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सकते, इट्स नॉट एडवाइजेबल। अब आएंगे शनि, विच इज द प्लैनेट ऑफ प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। शनि तो पाइसेस में घुस गया है, which is the last thing. These industries which have faced struggling, such as construction, right? ये contract हो गए थे. They Mhm. will now start showing growth. While land building is not considered the best in Shani Dasha, construction of existing land is considered good. So we are advising people not to buy land, but to construct on existing land. Okay. Mhm. Energy resources, waste management, these are good businesses. और अगर आपका शनि आपके 4th हाउस को देख रहा है, then it makes it good to buy more of this land. अब आप कहोगे भाई ये भी हो गया, what about राहु केतु? राहु केतु also denote spiritual and they also denote technology. केतु जो है, right? केतु is going into a very unique sign. केतु लियो में जा रहा है. What happens when केतु goes into Leo? It makes it even more spiritual for you. तो I think the timing is absolutely perfect जब केतु उसमें चला गया है, और राहु जो है वो दूसरे साइन में जा रहे हैं, क्वेरीज में. It will only make technology, spirituality, combination of them even better for you. तो यही कह रहे हैं कि these business sectors will be done very well. Mercury जिस नक्षत्र में बैठा है वो communication, education, tech. Long story short, education, tech, spirituality business, and construction businesses are recommended at this time. That is what we are recommending to people. Okay. Because So, how successful you will be will depend on your dasha and your kundali. Ji, definitely. Before we go further in our discussion, can we quickly take a call? Sure. Hello, you're on air with Dr. Bhatia. Thanks for holding. Hello. Yeah, Dr. Bhatia. I have a question for Hi. my sister. I Okay. so just wanted to know when we expect his marriage or marriages actually in which year. Okay. So What is her your date date of of birth birth? is June 28th, 2000. You said June 20, right? Not 28th. 28th, 20. 28th, 28th. June 28, And 2000. Okay. and the time of born is 8:30 p.m. 8:30 p.m. Okay. And place of birth? Ajmer, Rajasthan. Okay. Ajmer, Rajasthan. And your question is just कि भाई शादी कब होगी? Oh. अभी वही शो पे हम बात कर रहे थे कि शादी के लिए यू ऑलवेज दशा होती है, विंडो होती है, मुहूर्त होता है. हमने शोज पे बहुत बार कहा है कि शादी होती है फॉर अ वुमन जब जुपिटर दशा, राहु दशा, या छठे घर में जो प्लैनेट्स है उनकी दशा चल रही है. और आपकी सिस्टर की राहु दशा चल रही है. शी इज रनिंग राहु दशा. राहु जुपिटर जुपिटर, ये दशा स्टार्ट हुई थी मार्च 14, 2025 में. Yes, Rahu is sitting in a bad house, not a good house, but he still acts like moon, which is sitting in the house of meeting someone romance. March 14 से दशा start हुई, and this dasha will run all the way down till
August of 2027. During this dasha, she can find somebody. But is dasha ke beech mein, what is the best dasha, right? I would say it is July of 2025 through May of 2026. Because उस टाइम पे राहु जुपिटर चल रहा है, उस घर पे जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है और इस वुमन के लिए जुपिटर असेंडेंट है. So my best gut, this year July to May of next year, she should and can find a potential partner. It will just fall into place. There is no bad thing with Jupiter. He's a stable planet, he's strong and should work very well for you. Okay. Okay, yeah, thank you. Let's take another call. Hello, Sure. you're on air with Dr. Bhatia. Yes. हाँ डॉक्टर भाटिया नमस्कार. Namaskar, how are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. एक सवाल है मेरा, तो आपको मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं? वो हम गेस नहीं कर सकेंगे, वो तो बतानी पड़ेगी आपको. 13 अक्टूबर 1952 13 अक्टूबर 1952. Okay. एंड प्लेस ऑफ बर्थ झांसी उत्तर प्रदेश. Okay. And time of birth? टाइम ऑफ बर्थ 8:30 PM. Uttar Pradesh, Jhansi. 8:30 p.m. Okay. 8:30 question? PM. Question is that I am very keen on traveling around the world, so will I have, number one, enough money and good health to support my traveling? Again, this is October 13, 1952, 8:30 p.m. in Jhansi, Uttar Pradesh, right? Right. 13 मतलब 13. हाँ, 13. अब आपकी जो कुंडली बनती है टॉरस असेंडेंट है. ओके. एंड टॉरस असेंडेंट इज रन बाय प्लैनेट वीनस. वो बैठ गया है आपके छठे घर में, विच इज द हाउस ऑफ वर्क सर्विस विद मर्क्यूरी. असेंडेंट लॉर्ड देख रहा है 12th हाउस को डायरेक्टली, जिसमें जुपिटर बैठा है. 12th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल. तो टू आंसर Okay. योर क्वेश्चन, जब जुपिटर दशा स्टार्ट होगी तभी आप ट्रैवल करोगे. एंड फॉर यू वो दशा स्टार्ट हुई है 2024 जैन में. ओके. Sorry, January 24. 2024. हाँ, जनवरी Okay. 24 में दशा स्टार्ट हुई और ये दशा खत्म होगी 2039 में. इसके बीच आपको जितना ट्रैवल करने कीजिए, बट बेटर टाइम्स फॉर यू टू ट्रैवल आर व्हेन यू हैव सम पॉजिटिव एस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल, अब जुपिटर जेमिनी में जा रहा है, विच इज द हाउस ऑफ मनी. तो आई वुड से इस जून से लेके नेक्स्ट जून तक ट्रैवल कीजिए, इट इज कंसिडर्ड गुड. फिर जुपिटर Okay. शनि आएगा 26 मिड टू 28, डू नॉट ट्रैवल, नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर यू. फिर जुपिटर केटू आ जाएगा 2030 में फॉर अनदर 2 years, वहां ट्रैवल कीजिए. विल यू हैव द मनी? उसके लिए हम सेकंड हाउस देखते हैं. वो बैठा है सिक्स्थ में. जब सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ में बैठ जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम देता है मनी का, फाइनेंसिस का. सो अच्छा. अनफॉर्चुनेटली यू मे हैव टू कम बैक टू डू समथिंग, बट विंडो इज ओपन. यू विल ट्रैवल, यू शुड ट्रैवल. राहु भी आपके 9th में बैठे हैं, विच इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. You're not doing short travel like यहाँ से Yosemite चले जाओ. This is more like big travel you want to do. कीजिए, but monitor the times when you may have some financial stress. वो Okay. अगर आप करोगे timing, then you can always come offline and talk. That can help you Okay. figure out कि कब करना है. Okay? बट आपने ये बताया कि 26 से 28 के बीच में ट्रैवल करना ठीक नहीं है. नहीं है. It तो is not advisable. एज तो बढ़ती जा रही है ना. No, that is not relevant here. I'm not worried about that. 26 to 28 वो जो दशा है वो आपके फेवर में नहीं है. या स्पेशली 26 में भी कर लो, बट 28 में तो जरूर नहीं करना है आपने. नॉट एडवाइजेबल. Okay. एंड देन we'll have to see pinpoint कि कौन से मंथ में क्या ट्रैवल हो सकती है, just to make sure you will be absolutely secure. ठीक. Alright, चलो. Okay, thank you very much. Okay, bye. If you have further questions, you can reach out to Dr. Saket Bhatia directly by calling 408-639-5300. Listeners, सुन रहे हैं आप द एस्ट्रोलॉजी शो विद डॉक्टर साकेत भाटिया एंड वी आर टेकिंग कॉल्स. अगर आप अभी कॉल करके तुरंत बात करना चाहते हैं, then the number is 510-770-1550 or do call him after the show
408-639-5300. That's Dr. Bhatia's office number. info@saketbhatia.com is where you can write to him if you have any particular question, or do visit the website, which is the best source for all the information regarding him. It's saketbhatia.com. And हम बात कर रहे हैं about side businesses. So if you have any other question or anything to ask regarding this, और अगर किसी और के बारे में भी कोई प्रश्न है आपका, तो कॉल कर सकते हैं 510-770-1550. So we did talk about the favored businesses and what are the favored planetary positions जिससे कि business can be guided. So business जब हम करते हैं तो there is a big factor, the risk management. What about that? Can astrology guide us about the risk management in a business as well? So part of starting a business is understanding कि risk तो होगा ना, जी. right? Like everything in life, there is a risk, but risk किस चीज का है? Is it monetary risk or is it time risk or is it something else? Health risk. तो astrology में हम क्या कहते हैं? 8वां घर देखते हैं. The 8th house is basically the house of destruction. It is the house of sudden breaks. 6th is litigation, but 8th बहुत dangerous है. अगर 8th lord जो 8वें घर का मालिक है या उस पे कोई अच्छा प्लेनेट देख रहा हो, then immediately we can say that या उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, right? Then it will protect you against unexpected setbacks. Okay? अगर कोई बुरा प्लेनेट यहाँ बैठा हो या कोई बुरा प्लेनेट देख रहा हो, then you will have to create strategies for when those problems come. अगर 8वें घर पे मर्क्यूरी है, एस्पेक्ट कर रहा हो, तो it will help an entrepreneur navigate commercial uncertainties through very unique and analytical ways. तो 8वां घर देखना है. Obviously इसमें भी फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, like शनि, राइट? शनि देखना पड़ेगा कि ये कहाँ ट्रांजिट कर रहा है आपके कुंडली में. अगर शनि 8वें घर पे ट्रांजिट कर रहा है, even if Mercury is aspecting, it will make it slightly difficult for you to navigate, क्योंकि Saturn delay देता है, correct? Saturn on the other hand, अगर इस कुंडली में सेकंड हाउस या 11वें घर पे देख रहा है, तो प्रोटेक्ट करेगा. You won't lose your money very fast. There are many factors that we need to do. एंड लास्ट में हम दशा अंतरदशा देखेंगे टाइमिंग के लिए. कोई भी बिजनेस जो जुपिटर, मर्क्यूरी या वीनस दशा या अंतरदशा में स्टार्ट हुआ हो या 9वें घर के मालिक के दशा में, then they will automatically reduce stress, they will reduce issues of failing, reduce any difficulties in that dasha. So quick tip for listeners, इमीडिएट रिस्क देखने के लिए पहले अपने मून की दशा देखिए और मून का रिलेशनशिप देखिए लगन के साथ. Business decisions should never be made when moon is sitting in a bad house या moon पे बुरी aspect पड़ रही है. Make business decisions only when Jupiter is looking at your moon or Jupiter is in a favorable position with moon. For those people जिनका Jupiter moon conjunct है, well, you're lucky. You can make right business decisions almost all the time. But ये rare होता है. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि business start कीजिए, कुंडली देखिए और बघिए कि आपके स्ट्रेंथ में क्या लिखा है, राइट टाइम पे कीजिए and prepare for anything negative which can come your way. Everybody has challenges. So, and after that, are there any indications of building sustainable side income? Birth charts में कुछ ऐसे indications होते हैं which somebody can look for? So the one thing that हम देखते हैं, अगर आप हमें पूछे कि बिजनेस स्टार्ट करना है, is it going to be a long term business or a short term business? शॉर्ट टर्म बिजनेस वो होता है जो आपने स्टार्ट किया और क्विकली बेच दिया, या सेल कर दिया या पैसे बना के बेच दिए. But generally, most businesses have to become sustainable, right? कि एक Right. ऐसा इनकम सोर्स हो which accumulates wealth from time to time. And हमने पहले भी कहा है, the only houses we will look at are the second house and the 11th house. Second house पैसे का घर है, 11th घर जो है वो गेन्स का घर है, right? Again, I'll come back to Jupiter, Venus. अगर ये ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, तो ऑटोमेटिकली ईज ऑफ मनी फ्लो देते हैं. अगर सेकंड या 11th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों, then they will do very well. Some people, Vedika, don't start one or two, but they start multiple businesses. Do you agree? Multiple. Wow. इसे देखने के लिए हमें देखना है कि जो 5th हाउस है, which is intelligence, wisdom, growth, इसे पुत्र भव कहते हैं, इस पे कौन सा प्लैनेट बैठा है और इसमें
क्या एस्पेक्ट है। अगर इसमें जुपिटर बैठ गया जो नेचुरली एक्सपेंशन का है, देन वी विल टेल यू स्टार्ट मल्टीपल बिजनेसेस। जो चीज आप हाथ लगाओगे यू आर गोइंग टू डू वेल। इट क्रिएट्स अ गुड फॉर्चून योग, राइट। अगर नौवें घर, 11वें घर, 5वें घर या सेकंड हाउस अगर इनका भी कंजंक्शन हो गया और समहाउ दे आर कनेक्टेड, एक पावरफुल लक्ष्मी योग आ जाता है। दिस इज इन माय वर्ड्स सस्टेनेबल वेल्थ जनरेशन। ये एक ऐसा योग है कि आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। राइट। सो जो साइड इनकम सस्टेनेबल के लिए मर्क्यूरी भी देखनी है वो आपकी बुद्धि है। हाउ यू विल नेविगेट थ्रू डिफिकल्ट थिंग्स। D10 चार्ट देखनी है, D16 चार्ट देखनी है, धन योग भी देखना पड़ेगा जो कॉम्बिनेशन बनता है आपकी कुंडली में। क्योंकि जो धन योग है कहेगा कि आप कितना बना सकते हो। लाइक वेदिका, इफ यू वर टू विन अ लॉटरी टिकट टुडे but it's only $5, you may not be that happy. If it's 5,000, you'll be happier. If it's जी 500,000, even more happy, and you're already smiling. तो मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। हमें जी देखना है कि कितना बन सकता है इस बिजनेस में। एंड वी हैव टू बी ब्लंट एंड टेल यू यू कुड पुट इन 5 years, but this is all we see. सरस्वती योग एब्सोल्युटली। इंटेलिजेंस देगा। गुरु चंडाल योग है, वो भी इम्पोर्टेंट है। चंद्र मंगल योग भी इम्पोर्टेंट है। सो प्लैनेट्स जो मिथुन, कन्या, धनु या मीन, इन राशि इन घरों में अगर प्लैनेट्स बैठे हैं, देन इट इंडिकेट्स मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सो बिकॉज बिफोर ये फ्लेक्सिबल, जी सो ये बिफोर वी गो टू फ्लेक्सिबल घर है। ओके यस। no no I was just saying before going to multiple income stream which is really attractive option I think एक कॉल लेते हैं उससे पहले oh the call got dropped let's take another one hello you're on air with Dr. Bhatia Hi, my birth date is October 17, 59. Born in Baroda, Gujarat at 1:30 a.m. बड़ोड़ा गुजरात। Uh-huh. एंड टाइम क्या था आपका फिर से? 1:30 a.m. अक्टूबर 17th 1959, करेक्ट? Yeah, 1:30 a.m. ओके। So, क्वेश्चन क्या है आपका? not business related, but some court case चल रहा है जो नेबर ने पार्किंग ऑक्यूपाई कर दिया है और कुछ गलत कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहा है, वो कब होगा फिनिश और क्या होगा? आपकी जो कुंडली बनती है वो है कैंसर असेंडेंट। कैंसर का जो मालिक होता है वो मून है, वो मेष में बैठा है। ये कर्क लगन है और आपका नक्षत्र अश्विनी है। अब दशा चल रही है राहु मून की, राहु चंद्रमा की। राहु और चंद्रमा 8 घर दूर है और वैसे भी राहु चंद्रमा फ्रेंड्स नहीं होते। अगर कोर्ट कचहरी चल रहा है तो इस पे डायरेक्ट डेफिनेटली केतु का एस्पेक्ट है, और केतु का एस्पेक्ट नहीं जाएगा 18 महीने तक। अगर आपको कुछ अ- अच्छा चाहिए, मीनिंगफुल चाहिए, तो आई डोंट थिंक कोई रेजोल्यूशन है बिफोर जनवरी 2026। तो अब से लेके Jan 26 तक ऐसा चलेगा। टाइम इतना अच्छा नहीं है, आई एम सॉरी। ऑन द अदर हैंड, हाँ, अगर फेवरेबल दशा चाहिए तो जुपिटर की आएगी, लेकिन वो तो February 2027 तक नहीं है। तो अब से लेके दिसंबर तक अच्छा नहीं है। ठीक है। जनवरी से लेके दिसंबर तक थोड़ा टफ है, लेकिन उसके बाद 27 इज कंसिडर्ड वेरी गुड। लक है, फॉर्च्यून हाँ, है, पैसे की दशा है, गेन्स की दशा है। तो अगर ये केस आप ड्राई कर सकते हो 2 साल तक कर लो, नहीं होता है तो एटलीस्ट दिसंबर तक तो ड्राई भी कीजिए। ओके। हाँ। क्विकली हेल्थ का कुछ बता सकते हो तो? साइटिका चल रहा है। क्या चल, साइटिका प्रॉब्लम, पैर का हाँ, प्रॉब्लम? हाँ। देखिए बैक इस टू कुंडली बैक में, टू लेग लेग तक, या देखिए इस कुंडली में जब हम साइटिका पेन देखते हैं ना, हम 11वें घर को देखेंगे। ओके, ऑलवेज। इस कुंडली में शनि 11वें साइन को देखती है, 11वें घर को देखती है, और खुद 11वें घर का जो लॉर्ड है उसको भी देखती है। एस्पेक्ट थोड़ा शॉर्ट है, राहु दशा भी चल रही है, तो यस ये प्रॉब्लम है। आपको क्या चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी में हमें दिख तो रहा है, बट वो आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली इसमें?
सॉल्यूशन में रिलीफ कब मिलेगा या क्या करना है? रिलीफ रिलीफ तो देखिए, अभी ये केतु जाएगा लियो में, तो वो अच्छा नहीं है आपके लिए। आपको रिलीफ नहीं मिलती दिसंबर 2026 तक। ओके, वो भी वही है। इनफैक्ट हाँ। राहु मार्स दशा जो स्टार्ट होगी ना, वो सर्जरी भी दे सकती है मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो मेरे हिसाब से आप सर्जरी कीजिए, इट इज बेटर फॉर यू। नहीं तो पेन बढ़ेगी 18 महीने, उसका फायदा नहीं। ओके, हाँ। सर्जरी ओके। सर्जरी अगले साल मई जून में करो, इट इज बेटर। ऑलराइट, थैंक यू। You can always connect with Dr. Bhatia directly by calling 408 639 5300. To all the listeners tuned in, सुन रहे हैं The Astrology Show with Dr. Saket Bhatia. And if you're calling and you have further questions or anything which you would like to discuss in person, always reach out to him directly at 408 639 5300 or look at the website saketbhatia.com where you'll find all the contact information. And हम लोग बात करने वाले थे अबाउट मल्टीपल बिजनेस स्ट्रीम्स. सो जी, मल्टीपल बिजनेस स्ट्रीम्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज रेयर, ये होता है या उनके लिए या जो, इट्स वेरी रेयर. एग्जैक्टली. like look at Elon Musk, he has multiple business streams. ऑफ कोर्स. Elon Musk को छोड़िए, there are people here I know who have multiple business streams. They're working in a company, they've invested in some other startups, they've also bought a bunch of properties, they're actively involved in starting something with their friends. So these are called multiple business streams, right? But इसमें risk बहुत होता है, because not everything you do is going to be successful, correct? आप ऐसा कुछ ना कुछ तो करोगे जो अच्छा नहीं चलेगा। जी. अगर हमको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स देखनी है और वेल्थ क्रिएट करना है इनमें, तो ब्लूप्रिंट इसका क्या है? धन योग, मनी योग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकम स्ट्रीम के लिए। धन योग में सबसे इंपॉर्टेंट होगा लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग होता है जब आपका फर्स्ट लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड या पांचवा जो लॉर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं से एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरे के साथ। अगेन, असेंडेंट लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड या पांचवा लॉर्ड, ये या तो साथ में बैठे हों या एक दूसरे के घरों में बैठे हों या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हों। अगर ऐसा भी हो जाता है तो एक लक्ष्मी योग बनता है जो अबंडेंस देता है, वेल्थ की। ओके, गज केसरी योग, जुपिटर मून का जो कंजंक्शन है, ये सेकेंडरी रिलायबल इनकम सोर्स बन जाता है। फिर हम हमेशा कहते हैं गज केसरी योग इज नॉट रेयर, इट्स एक्चुअली वेरी कॉमन, बहुत कॉमन राइट. योग है। This tells people कि you have the ability to start your own secondary source of income. But many people misunderstand and misinterpret Gaj Kesari Yoga. Gaj Kesari Yoga के लिए, remember, Jupiter must not be retrograde. It cannot be combust. It should not be Lord of 6, 8 or 12. Moon should also be very strong और इन पे राहु केतु की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, तब एक स्पॉटलेस गज केसरी योग बनता है। तो लक्ष्मी योग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट होगा अमला योग। अगर आप अपने चंद्रमा देखिए या लगन को देखिए और उससे 10 घर दूर गिनिए, और अगर उस 10वें घर में मर्क्यूरी या जुपिटर या वीनस बैठा हो, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी ए रेयर अमला योग। ये प्योर एथिकल वेल्थ चैनल देगा आपको। दीज वर्क वेरी वेल। थर्ड योग हम देखेंगे, इसे हम कहते हैं कुबेर योग। पहले भी कहा वेदिका, कुबेर मीन्स somebody who will accumulate wealth more and more. इसके लिए हम सेकंड और 11th हाउस का एक्सचेंज या कंजंक्शन वो देखेंगे। लेकिन अगर कुबेर योग तो बहुत रेयर है, अगर हो जाता है, इट क्रिएट्स एक्सेप्शनल वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन कैपेसिटी। आप इसमें भी हाथ डालोगे, उसमें भी डालोगे, you'll do very well. पंच महापुरुष योग भी होते हैं, बट अगेन दे आर लिमिटेड सेकेंडरी कैपेसिटी। ये सब तो हम समझते हैं, दे आर योग्स इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज धन योग, लक्ष्मी योग, कुबेर योग, बट कारक देखना पड़ता है जो सिग्निफिकेटर है। बिकॉज हमने बार बार कहा है, सिग्निफिकेटर इज हाउ यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। ट्रू. अगर कारक वीक है, यू विल नॉट एंजॉय इट, समबडी एल्स, योर फैमिली माइट एंजॉय, योर फ्रेंड्स माइट एंजॉय। तो कारक के लिए, वेल्थ के कारक कौन होते हैं टिपिकली? जुपिटर एंड वीनस। यू एग्री? इन्हें ठीक से पढ़िए कुंडली में और नवंश चार्ट में। बिकॉज कुंडली में तो स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन नवंश में देखना है कि हाउ मच यू विल एंजॉय।
आप किसके नाम पे ये पैसे छोड़ के जाओगे, राइट? शुभ कत्र योग बेनिफिक होता है। तो अगर आपका वीनस या जुपिटर शुभ कत्र योग में है, लेफ्ट एंड राइट पे अच्छे प्लैनेट्स हैं, then definitely this is starting to show very positive signs for multiple income streams. I have not seen any chart, whether it is in the last 5 or 10 years, which matches all these points. नहीं होता। अगर इनमें से थोड़े बहुत पॉइंट्स भी हो जाए तो यू आर कंसिडर्ड वेरी लकी। इनमें से अगर थोड़े पॉइंट्स हों, यू शुड लुक एट मल्टीपल इनकम सोर्स, देन यू बिकम इन अ लीग ऑफ पीपल जो और बहुत कुछ कर सकते हैं। बट वेदिका इसमें भी होता है प्लैनेट सन, विच इज योर कॉन्फिडेंस, योर लीडरशिप एबिलिटी। और अगर आपका सन ही वीक हो, then all of this will fall apart. You will never Right. know when to start, how to start, with who to start. That's when we tell you कि सब कुछ right है, but आप फिर भी नहीं कर रहे, it is your fault. You are not taking that step to do it. So, are there any favorable periods when you should be starting, or like when you can have a successful multiple business stream? इसके लिए the most accurate thing is looking at the दशा system. विमशोत्तरी दशा जो होती है, जो 120 साल की दशा है, ये हमें कहती है बेस्ट टाइम क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए। जुपिटर दशा है, वीनस दशा हो, मर्क्यूरी दशा या इनकी महादशा हो, it is telling us that this is very good. You must support diversification. या अगर मून और सन की दशा है, then this is the time for income stabilization. I'll repeat. अगर आपकी जुपिटर वीनस मर्क्यूरी की दशा या महादशा चल रही है, it is supporting diversification. अगर मून और सन की दशा या अंतरदशा चल रही है, it is stabilization. इस पीरियड में हम ग्रोथ नहीं चाहते, हम स्टॉप हो जाते हैं। अगर आपको जी। प्रिसाइज टाइमिंग चाहिए इनमें भी, फिर नक्षत्र देखने पड़ेंगे। पहले भी कहा था, पीयूष नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, इनमें कीजिए। वन टाइम टू अवॉइड इज राहु केतु दशा, राहु केतु ट्रांजिट, इनको अवॉइड कीजिए। ऑल्सो अवॉइड वो जो हमने कहा था, जो वैक्सिंग सन वैक्सिंग मून होता है, वेनिंग मून होता है, राइट? Mm-hmm. सेकेंड, फिफ्थ और नौवीं तिथि, विच इज द सेकेंड डे, फिफ्थ डे, नाइन्थ, is considered very fortunate for wealth multiplication activities. Okay. जुपिटर जब ट्रांजिट करेगा आपके सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ या 11वें घर में, या असेंडेंट से या मून से, also considered very good for expansion. तो this is typically what we want to discuss कि expansion strategies क्या है। So, but multiple जो हमने देखा है, multiple business streams, of course, risk management and all that are important. And then how to balance all of those. So, can you guide us there कि कैसे अगर कोई start कर रहा है, and if the yogs are also everything in the right place, then how to balance it out? बैलेंस के लिए D10 चार्ट देखिए, not the कुंडली चार्ट। D10 is Okay. also the Dashamsha chart, which is focused only on your career, how effective you will be in your career, how you will manage diverse professional. अगर D10 चार्ट में 10th लॉर्ड स्ट्रांग हो, 10th हाउस स्ट्रांग हो, और अच्छे प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण में प्लेस्ड हो, then it generally indicates that you will be able to balance it very well. That's अभी उसमें you cannot confine and say ना, will I balance very well, very very well, or averagely well. So rule is simple. D10 chart में look at the 1, 4, 7, 10, 5 and 9 houses, and then look at the 10th lord. अगर ये strong है ना, you will be able to do it very well. And again, किसी के इतने strong नहीं होते, nobody has it this strong, but at the same time you can always say it's going to, थोड़ा भी हो तो अच्छा है। Some listeners might go on their kundali and say कि भाई हमारा इतना अच्छा नहीं है, यहाँ बुरे planets है। बुरे planet doesn't mean you won't be able to balance it. It just creates difficulties. It creates communication challenges. एक वेंचर स्टार्ट किया, दूसरा किया, एक को अटेंशन चाहिए, फिर दूसरे पे अटेंशन नहीं दे सकोगे। दैट्स व्हाट इट इज। द कोर इज टू बी एबल टू स्टार्ट, द कोर इज टू हैव दोस इंपॉर्टेंट योग्स इन योर कुंडली, टू हैव द राइट प्लेसमेंट इन योर कुंडली। अगर वो हो ना, तो आप कर सकते हो, ये सेकेंडरी हो जाते हैं। Right. So, Aj, of course, after a fruitful discussion, we are at the end of our show time. And will we continue next week about financial planning with astrology? फाइनेंशियल प्लानिंग तो अभी डिस्कस कर सकते हैं, इट इज वेरी जी। शॉर्ट, बिकॉज जब कोई आता है बात करने,
हम जी। पहले तो उनकी कुंडली देख के जुपिटर की ट्रांजिट देखते हैं। एक अष्टवर्ग सिस्टम है जहां पर घर होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स होते हैं। अगर आपके घर कुंडली में कोई भी ऐसा घर हो जिसके 30 बिंदु विच इज 30 पॉइंट से ज्यादा हो, दैट इज कंसिडर्ड गुड। दैट विल गिव यू लीस्ट रेजिस्टेंस टू फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर 25 हो या उससे कम हो, देन दोज हाउसेस नीड स्पेशल अटेंशन। उनके लिए कोई रेमेडीज दे सकते हैं हम। वेल्थ के लिए सेकंड 11th घर देखिए, दे विल टेल अस द ऑब्स्टिकल्स, फाइनेंशियल लैंडस्केप। कितना बनाओगे, कैसे बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे, मुंह से बनाओगे, एक्शन से बनाओगे, दिमाग से बनाओगे, हाथ से बनाओगे। दिस इज what is important in financial planning. Slow moving planets will tell us how much time it will take. Galika Mandi on the other hand will say hidden patterns कि आप wealth किस तरीके से बनाओगे। तो they're all tied, Vedika. जी। It takes a lot of time to come up with these analysis, to read the chart, to figure out कि exactly हमें किसको क्या guidance देनी है. So for all the listeners, we're out of time, but don't just say I'm buying land, I'm buying a house, I'm starting a business, I'm opening a restaurant, I'm investing with my friend. Get the facts right. Know आपको क्या करना है, कब करना है, किसके साथ करना है. Know in advance क्या होगा. That will help you. Thank you so much for joining us on air and taking such an important topic. And listeners, अगर आपने शो मिस किया है या नहीं सुना पूरा, you can always go to रेडियो जिंदगी Facebook page and look at the show recording. And अगर आपका कोई भी question है, we are out of show time. I know many callers are trying to reach us, but we can't take any more calls. Do reach out to Dr. Bhatia directly by calling 408-639-5300. And if you're driving, can't take down the number, do visit the website saketbhatia.com and you'll get all the information. We'll see you next Tuesday, 4 to 5 p.m. Once again, thank you for joining us. Bye bye.